help me welcome, with big round of applause and sheer joy and enthusiasm, our chief guest of the evening, Honorable Minister of Gujarat State, Shri Jagdish Vishwakarma ji. Can we have a very big round of applause for sir? It is indeed our pleasure and honor to have you over here with us, sir. I request IIF President Shri Devendra Jain to please welcome sir on the dais, please. Now we want to bow down before our God to seek Almighty's blessing. I now request Honorable Minister sir, the President sir, the Chairman sir, and all the other dignitaries on the dais to kindly step forward for the lamp lighting. Thank you. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सर्वकार्येषु सर्वदा. After the warm welcome words and seeking the blessings of Almighty, we would like to present a token of gesture to all our esteemed dignitaries. Foremost, I request Shri Subodh Panchalji to kindly welcome Honorable Minister of State, Shri Jagdish Vishwakarma ji, with a sash and a memento. I request Honorable Minister Sir to kindly hand over the Lifetime Achievement Award to Shri Subodh Panchalji. Now, with complete dignity and respect, I welcome Honorable Minister of Gujarat State, Shri Jagdish Vishwakarma ji, to kindly deliver his address to the august audience present here. Over to you, sir. Good evening, everyone. Namaskar. Kem છો બધા? I give to me great pleasure to be here with you all this evening in the inaugural ceremony of the 70th Indian Foundry Congress and IFSX 2022. आज मेरे साथ मंच पर विराजमान फाउंड्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट देवेंद्र जैन जी, श्री सुबोध पंचाल जी, श्री राम विजय जी, श्री चेतन शाह जी, and other dignity on the dais and of the dais, ladies and gentlemen and all media people. I am very welcome to in Gujarat. 2 साल के एक कोरोना की महामारी के बाद पूरा देश बट पूरा वर्ल्ड कोरोना के लिए सामने जब झुझुम रहा था, तब देश के यशस्वी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक काफ़ी अच्छा स्लोगन दिया, आत्मनिर्भर भारत। और ऐसा ही स्लोगन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने दिया है, आत्मनिर्भर गुजरात टू आत्मनिर्भर भारत। और यही दिशा के अंदर आज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और देश के वड़ा प्रधान जी का जो विज़न है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, उसके बदौलत आज हम जहाँ ये फाउंड्री एसोसिएशन का जो एग्जीबिशन हुआ है, देवेंद्र जैन से जो बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर द मैन्युफैक्चरिंग द फाउंड्री इंडस्ट्री एंड कास्टिंग। आज कोई भी सेक्टर देख लो, हर सेक्टर के अंदर आज बूमिंग पीरियड चल रहा है। फॉर इंडस्ट्री सेगमेंट देख लो, एग्रीकल्चर सेगमेंट देख लो। जस्ट आज मेरी विजिट थी दियोदर में, कल पीएम साहब यहाँ विजिट कर रहे हैं, पीएम साहब का दौरा है। कल बनासकांठा के अंदर 19 तारीख को एक मिल्क प्रोडक्शन का प्लांट इनोग्रेट होने जा रहा है। आज गुजरात का सिनारियो देखा जाए तो पर डे का 2 करोड़ लीटर मिल्क आज गुजरात प्रोड्यूस करता है। अगर एक ख्याल आए दिल के अंदर, वाई पीपल आर कमिंग इन गुजरात, वाई पीपल आर कमिंग इन द इंडिया एंड वाई इंडिया इज ग्रोइंग नाउ। पीएम साहब का जो विज़न है कि आने वाले दिनों के अंदर 5 बिलियन इकोनॉमी को में ले जाना है। मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात GDP इन करंट प्राइस ग्रो एट द 10% इन CAGR,
between the 2015-16 and at present 2020 with GSDP in total USD 221 billion economy against the USD 137 billion. Gujarat announced for about 7% of the Indian industrial output with the 11% of the Indian factories. In India, 2019-20 manufacturing sector share as a percentage of the state GSDP was 37.5% and compared the 70% of the national GDP. गुजरात एक्सपोर्ट की बात करूं तो जब 2001 के अंदर गुजरात का जो एक्सपोर्ट था 2001 से पहले 4,000 crores only. And what is the about the today export in Gujarat? 4 lakh crore rupees. The Gujarat export good service to over the 180 countries with a 21% share in India's total export value of the US 60.5 billion in FY 2022 and 2021. In pioneering state with the many first rank in the foreign direct investment, first rank in the logistic performance index 2018, 2019 and 2021, and first rank in the export parameter index 2022, and first best performance in the Indian national startup ranking. आज ऐसा कहूँगा कि देश के वड़ा प्रधान जी ने, मैं सुबोध भाई से और देवेंद्र जैन से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी फाउंड्री मैन यहाँ आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, गांधीनगर से बावला यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर का रनवे है. नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनोग्रेशन किया था, उसका नाम है आई क्रिएट. जितने भी स्टार्टअप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई क्रिएट नाम की एक काफ़ी बड़ी अच्छी संस्थान खड़ी की है वहाँ पे. जितने भी स्टार्टअप को अगर कोई भी इनोवेशन करना हो, वो इनोवेशन का प्रोजेक्ट लेकर वो स्टार्टअप के अंदर जाता है तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का स्टडी किया जाता है. स्टडी करने के बाद वो प्रोजेक्ट कितना वायबल है इन द फ्यूचर, द एंटायर वर्ल्ड कितना प्रोडक्शन के अंदर कितना वायबल रहेगा, तो उसका वैल्यूबल देखकर तो सारे स्टूडेंट को स्टार्टअप के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म, लगभग 40 एकड़ लैंड के अंदर पूरा आई क्रिएट डेवलप किया हुआ है. मैं देवेंद्र जैन जी और सुबोध भाई से कहूँगा पूरी टीम को लेकर एक बार आई क्रिएट की विजिट जरूर करनी चाहिए. आने वाले दिनों के अंदर जैसे सिनारियो चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसके हिसाब मुझे लगता है कि आई क्रिएट और जीटीयू जैसी संस्थाएं आने वाले दिनों के अंदर हमें टेक्नोक्राफ्ट स्टूडेंट और टेक्नोक्राफ्ट लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा माहौल खड़ा करेगी. बेस्ट composed of the water management index in Niti Aayog, we are the first in the India. Why people are coming in Gujarat? It is 7 reasons to invest in the Gujarat. We are the number 1 in the power. 39 gigawatt generate the power in the Gujarat. Skill development, 1 million worker trained annually throughout the 580 ITIs. इंडस्ट्रियल लैंड अवेलेबिलिटी, गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि अगर गुजरात के अंदर किसी को भी इंडस्ट्रीज डालनी हो तो वी हैव द लैंड बैंक अवेलेबल इन द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कि वी हैव एनीवन पीपल कम इन गुजरात, तो लैंड बैंक कहाँ पर जगह अवेलेबल है. वी हैव मोर देन 200 GIDC in the Gujarat. So we have good facility in the Gujarat. We have 20 SEZ in Gujarat. We have 3 SRS in the Gujarat. Road and railway connectivity is the best in the India. We have road connectivity 1.8 lakh kilometers as well as surface road available in Gujarat. Railway, we are the 5,200 kilometers railway line in the Gujarat. Gujarat has the Indian biggest coastal area in the Gujarat. In 48 ports, handling the 40% of the India's cargo movement. Entire the India का जो cargo movement है, more than 48% cargo movement वो गुजरात से हो रहा है. That's why people are coming in Gujarat. Air connectivity, we have 90 operational air connectivity airports and 3 international airports in Gujarat.
ये सारा का सारा डेवलपमेंट जब देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की निगरानी के अंदर ये सारा का सारा डेवलपमेंट हुआ था। और उसी के बदौलत आज देखा जाए तो गुजरात का विकास का जो रोल मॉडल है वो पूरे देश ने नॉट अ वन टाइम सेकंड टाइम पर हाईएस्ट लीड से मोदी जी को लीड किया है, सपोर्ट किया है। सो आई अगेंस्ट थैंक टू माय पार्टी, टू ऑल ऑफ यू कि अगर नरेंद्र मोदी जी आज कहा जाए तो वैश्विक लीडर के रूप में, अभी अमेरिकन सर्वे हुआ था तो मोर देन 70% मोदी जी को मिले थे कि भी बिगेस्ट लीडर एंड जो विजनरी लीडर है, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। ए प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट कमिटेड टू EODB, आज गुजरात के अंदर मोर देन 6 लाख MSME इंडस्ट्रीज है। इन्वेस्टर फैसिलिटी IFP portal is the first time launched in the government of Gujarat. In last year, we have solved the 8,60,000 application across the 20 state department. In the Gujarat, कोई भी एंटायर द वर्ल्ड या एंटायर द इंडिया से कोई भी अगर इंडस्ट्रीज डालने के लिए गुजरात में आता है तो जैसे ही एप्लीकेशन डालता है तो वी हैव स्टेट की जो फॉर्मेलिटीज होती है, मोर देन 20 डिपार्टमेंट्स वी हैव। अगर लैंड बैंक से लेकर उसको इन्वेस्टमेंट करने तक, प्रोजेक्ट को रन करने तक, मोर देन 20 डिपार्टमेंट को रन हमने ऑनलाइन किया है। तो मोर देन 8,60,000 एप्लीकेशन वी हैव कंप्लीटेड ऑनलाइन। डिजिटलाइजेशन लैंड बैंक, GIS बेस्ड मैप प्रोविंग, काफ़ी इंडस्ट्रीज। आज दहेज की बात की जाए, आज गुजरात के अंदर सेक्टर लीडरशिप है। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड सिस्टम डिजाइंस, synthetic and ceramic goods, textile. We have biggest textile sector in the Surat, and now we are Navsari. In 1,000 hectare land we have provide the few new textile park, and we have the India का सबसे डायमंड प्रोड्यूस 98% डायमंड इंडिया का गुजरात में प्रोड्यूस होता है, और मोर देन द 70% डायमंड प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड इन द ओनली गुजरात। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म रिफिलिंग इन द हब, ग्लोबल लीडर इन डायमंड प्रोसेसिंग इन सूरत, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोरबी के अंदर। मुझे बेहद खुशी होती है कि हमने जिस रिसेंटली मोरबी के अंदर पूरा सिरामिक हब बनाने जा रहे हैं, और मोर देन 400 करोड़ का सिरामिक हब होगा। सिरामिक का पूरा एग्जीबिशन, आज तक हम लोग जो चाइना से डिपेंड रहते थे पूरा का पूरा मोरबी के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। एंड एशियन लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट में अमूल की बात कर दो, अमूल का जो रोल मॉडल है आज पूरे देश के अंदर, अमूल इज द हाईएस्ट बिगेस्ट प्रोडक्ट इन द इंडिया। जितने भी फार्मर्स है, जस्ट मेरी अमूल के आज MD से बात हो रही थी, हम लोग को 150 करोड़ रुपीस एवरी डे फार्मर्स के घर के अंदर डायरेक्टली जमा होते। पर डे का 2 करोड़ लीटर मिल्क वी आर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग। मोदी जी का जो विजन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसी तरह से गुजरात आज आगे बढ़ रहा है। पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच स्टेट गुजरात है। इन द ओवर द 20 सेक्टर specifically invest in the policy. We have good policy in the Gujarat, investor subsidy, industrial policy 2022, garment and apparel policy. We have electrical vehicle policy. We have the interlargest logistic and park policy. We have solar policy, agro business policy, IT sector. We have recently opened the IT sector policy also. We are the approach defense policy. इन आने वाले दिनों के लिए फाउंड्री इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा पूरे एंटायर इंडिया के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो डिफेंस पॉलिसी बनाई है, पहले जो क्या था कि पहले की नज़र ऐसा था कि कोई भी डिफेंस अगर कोई भी ऑटोमाइजेशन अगर मशीनरी हम लोग लाते थे फॉरेन से, तो उसके अंदर ऐसा था कि हमारे पास हम लोग वी कांट मैन्युफैक्चरिंग द एनी डिफेंस पार्ट्स। एंड नाउ सिनेरियो इज चेंज।
in Gujarat, in entire the India, we have defense policy, so it is a very big future for the foundry and engineering industries also. We have the, in future Gujarat, future infrastructures की बात की जाए, DMIC and DFC, we have very gift city. जो भी गुजरात में पहली बार आया है, मेरा अनुरोध है आप लोगों से और सुबोध भाई से भी अनुरोध है, आई एम ऑल्सो कोऑर्डिनेटर विद माई डिपार्टमेंट, एक बार जरूर से गिफ्ट सिटी विजिट करनी चाहिए. इंडियन फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, IFSC सेंटर इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज, INX इन द गांधीनगर. Dholera sir, we have more than 900 square kilometer land available in Dholera sir, Dream City and Diamond Research and Miracle City in the world largest single complex, Diamond Bruj in the Surat. We have high-speed rail. Mandal Bechraji ISR is the home, some of the world largest automobile industries in the Gujarat. Suzuki, Toyota, Tusuko, Honda. We have a biggest automobile industries in Gujarat. नरेंद्र मोदी के विजन के अंदर आज कहा जाए तो पूरा एंटायर द इंडिया इज अ ग्रोइंग पीरियड, एस्पेशली गुजरात. आई एम लीडिंग इन द गुजरात, सो इट इज़ अ वेरी बिग फ्यूचर इन द इंडस्ट्रीज. और जैसे अभी देवेंद्र जैन से बात हो रही थी, मैंने उन्होंने पूछा कि भाई देवेंद्र जी, हाउ इज़ द फाउंड्री बिजनेस इन द इंडिया. देवेंद्र जी ने काफ़ी अच्छा कहा कि बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ग्रोइंग पीरियड है, प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन डबल हो चुका है, प्राइस भी अच्छे मिल रहे हैं. कमी सिर्फ एक बात की है, रॉ मटेरियल का प्राइस प्लस होते जा रहे हैं. मैंने बोला देवेंद्र जी ये तो ग्लोबली प्राइस फैक्टर का सवाल है. इट इज़ अ टाइम बीइंग द प्राइस सेक्टर्स. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, और आई ऑल्सो कम इन द सेम इंडस्ट्रीज, आई हैव ऑल्सो द इंडस्ट्रीज. तो रॉ मटेरियल के प्राइस अगर प्लस होते हैं तो वी आर द फेसिंग द मैक्सिमम. बट इनकमिंग फ्यूचर्स, मुझे बेहद खुशी होती है कहने के अंदर कि आज गुजरात के अंदर मेरी कल विजिट हुई जम्मू सर के अंदर. वी आर द बिगेस्ट एम्प्टी वायल प्लांट इन जम्मू सर. द सॉल्ट ग्लास इंडिया इज द सिस्टर कंसर्न ऑफ द काल जायस कंपनी. इन गुजरात वी आर मैन्युफैक्चरिंग पेन टू लेकर प्लान तक. अगर गांधीधाम के अंदर देखा जाए तो पेन भी मैन्युफैक्चर हो रही है और प्लान अम्ब्रेला के अंदर प्लान भी मैन्युफैक्चर हो रहा है. L&T हजीरा में देखा जाए तो L&T हजीरा के अंदर डिफेंस की टैंक भी बन रही है. बैचरा जी में देखा जाए तो मारुति सुजुकी का प्लांट है. अगर अहमदाबाद गांधीनगर की बात करें तो आई के लेंस बन रहे हैं. आज इंडिया की हाईएस्ट, ऐसा कहा जाऊं कि अगर वर्ल्ड की हाईएस्ट गैस पाइपलाइन गांधीधाम के अंदर वेल्सपन मैन्युफैक्चर कर रहा है. डक्टल आयन पाइप भी गांधीधाम के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है. इट मीन्स इतने सारी इंडस्ट्रीज इंडिया के, गुजरात के लीडिंग इंडस्ट्रीज द स्टेट इन द गुजरात, बिकॉज वी हैव द गुड पॉलिसी इन द गुजरात. मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, विजन से हिसाब से आने वाले दिनों के अंदर जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, लोकल टू वोकल का प्रोजेक्ट है, आत्मनिर्भर भारत का प्रोजेक्ट है, वो आने वाले दिनों के अंदर मेरे सामने जो बैठे फाउंड्री मैन है वो जरूर पूरा करेंगे. और ये जितने भी पार्टिसिपेट्स हुए हैं, जितने भी फाउंड्री मैन पूरे इंडिया से आए हुए हैं, और मैं फाउंड्री एसोसिएशन को भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने गुजरात के अंदर शायद 2 साल के बाद ये पहला फाउंड्री एग्जीबिशन हो रहा है. आने वाले दिनों के अंदर इंडस्ट्रीज का बूमिंग पीरियड आने वाला है. जिस तरह से आज गुजरात ग्रो हो रहा है और हमारे नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के अंदर पूरा इंडिया ग्रो हो रहा है, तो मैं आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्रीज ग्रो होगी. और आने वाले दिनों के अंदर हर सेक्टर के अंदर, रेल सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, गुजरात इज द ग्रो एंड इंडिया ऑल्सो ग्रो. अगेन आई थैंक यू टू फाउंड्री एसोसिएशन. थैंक यू.